Hi friends. Okay, now you all are well familiar with me. Myself, Pooja Agarwal. The today's topic. So today what we are going to study? We are going to study English Chapter 2 for NCERT syllabus 10th standard. Okay, so here I'm going to describe you the whole chapter in very small way. Before that, if you have not yet liked, share and subscribe my channel, please do subscribe it. Okay. Before wasting time, let me start it. So let's start with our chapter. What is the name of the chapter? That is Nelson Long Walk to Freedom. The name is Long Walk to Freedom. It is written by Nelson Mandela. Now, what is there in that? It is an autobiography of Nelson Mandela himself. Who was Nelson Mandela? First of all, ठीक है, यहाँ पे हमको इसके बारे में डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे उसके बारे में समझेंगे हम. Okay, so we are having the name of a character, that is Nelson Mandela. He became the first black president of South Africa. कई सालों पहले ये एक सिचुएशन थी, यहाँ पर एपेथाइड चलता था. Okay, what is the word? Just concentrate. In South Africa, Apartheid was a system going on. What is that system? इस system के अंदर क्या होता है? That the people were being discriminated based on their color. Okay, जो हम बोलते हैं गोरे काले, ठीक है, जो गोरे काले का भेद, जो the same thing was there in our country also. The same thing was there in South Africa. Here it is all described about South Africa. ये पूरी स्टोरी किसके ऊपर है? साउथ अफ्रीका की एक प्रेसिडेंट के ऊपर. एंड his speech, what he delivered when he was selected, and there was a conference, there was a meeting, ठीक है, जो उसकी फर्स्ट मीटिंग थी, उसके अंदर उसने अपने सारे शब्द रखे हैं. लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना है? विद एपेटाइड, व्हाट इज दैट? डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर. तो वहां पर ब्लैक और व्हाइट ये डिस्क्रिमिनेशन सदियों से चलता आ रहा था. नाउ टू फाइट अगेंस्ट दैट, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या थी? देयर वाज अ कमिटी दैट वाज नेम्ड एज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. दैट वाज अ कमिटी. ये एक ग्रुप था जो इसके खिलाफ फाइट करते थे. दे वर अपोजिंग इट. वो लोग चाहते थे कि ये सिस्टम पूरी तरह से हमारी कंट्री में से निकल जाए. यहाँ हमारी कंट्री मतलब कौन सी चल रही है? साउथ अफ्रीका. वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका. नाउ इन 1994 हमें क्या ध्यान रखना है? प्लीज बी कॉन्सेंट्रेटेड, बिकॉज ये पूरा जो चैप्टर है इट इज बेस्ड रिलेटेड टू द हिस्ट्री. ठीक है, एसएस की जैसा है. तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है. यहाँ पे एक चीज है जो हाईलाइट वर्ड्स हैं, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू वेरी वेल. ओके, तो एपेथाइड, एक एपेथाइड नाम का वहां पर सिस्टम चलता था, और दिस सिस्टम वाज गोइंग ऑन सिंस आई कैन कंसिडर फर्स्ट डिकेड. ओके, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड से वो स्टार्ट हुआ था, और जिसकी जगह पे एट द लास्ट डिकेड ही वाज इलेक्टेड. नाउ इन द 1994 the elections took place, and in 1994 it was the first time when the black became a president. Who was that person? That was Nelson Mandela. कौन था वो? Nelson Mandela. तो in 1994 the election took place and a fair result was being announced. ये सारी चीजें हमको किस पे से पता चली? Based on BBC News. BBC News. There was an article published in BBC News. BBC News के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, and that article was published on 10th May 1994. Okay, there was an article published in BBC News on 10th May 1994. BBC न्यूज के अंदर पब्लिश हुआ था that Nelson Mandela was elected by, or was he won by 252 votes. उसको कितने
कितने वोट्स मिले थे? 252 सीट्स. ओके, वी कैन कंसिडर सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स. ठीक है, तो ये सब चीजें हुई उनके साथ में. नाउ व्हाट हैपेंड दैट देयर वाज गोइंग टू हैल्ड अ कॉन्फ्रेंस. एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी. यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर. व्हाट वाज द नेम? इट वाज अ यूनियन बिल्डिंग. So the name of that building was Union Building Amphitheater. It was situated in Pretoria. Okay, तो वहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी. बहुत बड़ी मीटिंग मतलब कि वहां पर दूसरी कंट्रीज के लोग भी आने वाले थे. Now among them we can consider that more than 140 countries president. Okay, they all participated. They all gathered there. So for the whole day he was being surrounded by these peoples. 140 countries के वहाँ पर deputy. Okay, they all gathered there. In that building there was more than 1 lakh men's and women's. Okay, who gathered there. So we can consider that उसने 10th May के जो न्यूज़पेपर में जो पब्लिश हुआ था, in that he told that I am being surrounded by several leaders since few days. Why it was so? Just because he was going to be honored. He was going to be honored as the president of South Africa. यहाँ पे रेनबो स्ट्रक्चर मतलब क्या है? ऐसे कई सारे वर्ड्स उसमें यूज हुए हैं एंड यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट. ओके, सो रेनबो स्ट्रक्चर. तो रेनबो स्ट्रक्चर मतलब क्या है? कलर, caste, creed, okay, based without discrimination of all these things. वहाँ पर हर तरह के लोग मौजूद थे. Okay, all types of people gathered there. So we can see the rainbow was seen there in this theater. It is a Union Building Amphitheater. What do you mean by amphitheater? Amphitheater मतलब क्या होता है? A place where the शेड इज नॉट देयर. ओके, ऊपर शेड नहीं होता, पूरा खुला मैदान. हम लोग समझ सकते हैं स्टेडियम. ओके, अ काइंड ऑफ स्टेडियम. तो उसी तरह से वहां पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था. एंड ही गैदर्ड देयर अलोंग विथ हिज डॉटर. वो वहां पर किसके साथ आया था? अपनी डॉटर के साथ. व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज डॉटर? Janani. Janani was the name of his daughter. Okay, you can write these details. और ये details को पहले मैं short में बता देती हूँ. What is there? There is a president of South Africa named Nelson Mandela who was going to be honored on 10th May 1994, and this news was published in BBC News because of his honor which took place on 10th May. Before that only he was surrounded by several leaders, and this meeting took place in the Union Building Amphitheater in Pretoria. There more than 140 countries president participated. 140 countries से ज़्यादा presidents ने वहाँ पर participate किया था. More than 1 lakh people gathered there without any discrimination of caste, creed and color. He went there along with his daughter Janani, and he was already running a center which was a group. ठीक है, एक ग्रुप था उनका, एक कमिटी थी that was named as African National Congress. Okay, this thing is clear now. I'm erasing it. अब आगे उसके साथ क्या होता है? Now when he was welcomed there, when he was there, तो उस समय उसको ये चीज़ का रियलाइज होता है कि मैं अकेला, ये जो जीत आज मुझे मिली है इतने सालों से, जो लोग कैद में थे, जो अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकते थे, जो अपनी फ्रीडम को जी नहीं सकते थे, ऐसे लोगों को आज के बाद फ्रीडम मिलने वाली है. उसकी नज़र में फ्रीडम, पहले कुछ फ्रीडम की बहुत सारी डेफिनेशन थी. ऑल दीज डेफिनेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. ओके, लेकिन अभी वो क्या बोल रहे हैं कि नाउ एट द स्टेज व्हेन ही वाज, एट द टाइम व्हेन ही वाज देयर टू बी ऑनर्ड, दैट टाइम ही इज रियलाइजिंग, तब उसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ
उसमें पहले भी लोगों ने बलिदान दिए हैं. मेनी पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स एंड हु आर नॉट एबल टू सी व्हाट दे हैड डन. ओके, तो उन सब की बदौलत आज वो जो भी है या आज उसको जो पोजीशन मिली है, तो ये लड़ाई तो कब से स्टार्ट हो गई थी, तब जाके आज उसको ये पोजीशन मिली है. व्हेन ही वाज देयर ऑन द पोडियम, ठीक है, जब वो स्टेज पे बैठे थे, दैट टाइम व्हाट हैपेंड, at the first seat there was Mr. D. Clark. Okay, he was sitting first. सबसे पहले वो गए, उनने अपनी स्पीच दी. Who was he? He was the second deputy president. He was the second deputy president. Now, followed by him, there was the person. Who was he? He was the first deputy president. ठीक है, वो first deputy president थे. Now, after he completed his speech, there was a turn of Thabo Mbeki. Now, after him came the chance of Nelson Mandela. अब यहाँ से नेल्सन मंडेला की स्पीच स्टार्ट होगी. Now he is saying that मैं एक ऐसे नेशन में जन्म हुआ है मेरा जहाँ पर ह्यूमैनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए. ठीक है, वो हमेशा किस चीज का रेस्पेक्ट करता है या किस चीज को मानता है? ह्यूमैनिटी मस्ट बी देयर. सो डिस्क्राइबिंग ह्यूमैनिटी ही आल्सो गिव एन एग्जांपल. उनने ये चीज बताई थी. ओके, पहले आपको ये बता देती हूँ दैट ही वाज वर्किंग इन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कमेटी थी उन लोगों की. तो उसके अंदर वहां पर इस तरह से था कि साउथ अफ्रीका के अंदर कोई भी अपना सर उठा के नहीं बोल सकता था, अपनी फ्रीडम के लिए बात नहीं कर सकता था. बट इवन दो ही डिड इट, तो उस समय उसको कई बार जेल भी हो चुकी है. ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं पेट्रोइट्स वर देयर. ओके, पेट्रोइट्स वर देयर. तो ये सब क्या थे? ये सब आज़ादी के लिए लड़े थे. तो इसलिए आज़ादी की लड़ाई में फ्रीडम के लिए जब व्हेन दे फाइट दे वेंट टू जेल आल्सो मेनी टाइम्स. नाउ here what is the situation that first of all he is saying I am proud of humanity. He was, पहले क्या सिचुएशन थी? आउटलॉज मतलब कि कायदे कानून से लोगों को बहुत दूर रहना पड़ता था. जबकि नाउ टुडे ही हिमसेल्फ इज द रूल. ही हिमसेल्फ इज रूलिंग. उसी का राज है. ठीक है, जिसको कायदे कानून के सामने आने की परमिशन नहीं थी, टुडे ही हिमसेल्फ इज दैट पर्सन. So he is considering that this is a common victory of justice. न्याय हुआ, peace and human justice, peace and dignity. ये उनकी जीत हुई है. Today he got the achievement from emancipation. What is emancipation? Emancipation मतलब कि restrictions, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन. अभी तक उनको रेस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ता था, तो आज उनको कंप्लीट फ्रीडम मिली थी. He described in his speech that the sun shall never set on so glorious a human achievement. आज से पहले इंसान की ऐसी अचीवमेंट नहीं हुई होगी. ओके, सन आज जितना खुश होकर अस्त होगा, ऐसी खुशी उसे कभी नहीं मिली होगी. दिस वॉज द स्टेटमेंट गिवन बाय नेल्सन मंडेला. हिज स्पीच वॉज गोइंग ऑन. सब हो गया. अभी थोड़ी देर बाद वहां ऊपर इन द स्काई देयर स्टार्टेड द एरे ऑफ जेट्स, एरोप्लेन्स. ओके, ये सब ऊपर आने लगे एंड दे फॉर्म्ड अ स्ट्रक्चर, अ ट्राइंगल स्ट्रक्चर. ठीक है, वी स्ट्रक्चर के अंदर जब वो लोग सब, मतलब ये सब कुछ क्यों आया था? जस्ट टू गिव रेस्पेक्ट टू नेल्सन मंडेला, इन द रेस्पेक्ट ऑफ नेल्सन मंडेला. और ये सारे जेट्स वगैरह जब जा रहे थे, दैट टाइम दे लीव द स्मोक ऑफ सेवरल कलर्स. ओके, सो आफ्टर दैट व्हेन इट वाज लीविंग, या फिर हम ये बोले ये जो जेट थे वो आज उसको वेलकम के लिए आए थे. ओके, दे वर वेलकमिंग हिम. ये कौन सा इंसान है जिसको आज तक, यानी द पुलिस, द पीपल विद द मेडल्स, दे वर सैल्यूटिंग हिम. ओके, कौन सैल्यूट कर रहा था? जिनने थोड़े समय पहले उसको अरेस्ट किया था, जो पहले सिर्फ उसको अरेस्ट करने आए थे,
Now they are giving him respect. Now they are saluting him. Okay, all these things happen. This make him feel more happy. अब उसके बाद में जब ये सारे जेट्स वहां से गए, दे लीव द स्मोक इन अ वी शेप. ओके, और ये जो स्मोक था वो कौन से कलर का था? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. Later on we can consider that that is the color of flag of South Africa. ये साउथ अफ्रीका की फ्लैग का कलर है. तो एक फ्लैग फॉर्म करके वो वहां से जेट उसका वेलकम करके उसको ऑनर करके वहां से गया. दैट वाज अ ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर हिम. बस उसको प्राउड इस चीज का था दैट टुडे दैट आर्मी, दैट पुलिस, दे केम देयर टू सैल्यूट हिम, नॉट टू अरेस्ट हिम. दैट वाज द डे व्हेन टू कलर्स सेंग टुगेदर. ठीक है, ब्लैक और व्हाइट दोनों ने एक एक सॉन्ग गाए थे. केकोशी शिकला शिकेलाल, that was sang by the white, and Die Sting was sang by black. ये दोनों ने जब गाया उन्हें उसके लिरिक्स नहीं पता थे. They were not knowing what they are going to speak, but later on soon it was going to become it was going to be by heart to them. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उनका नेशनल एंथम बनने वाला था. तो ये सारी चीज की स्टार्टिंग हम समझ सकते हैं कि कहाँ से हो रही है. व्हेन नेल्सन मंडेला वाज बीइंग इलेक्टेड एंड टुडे ही वाज वेरी प्राउड कि आज ये जो दिन उसको मिला है, तो हजारों लोगों ने उससे आगे ये सेक्रीफाइस किया है. हजारों लोगों ने, तब जाके उसे आज ये दिन देखने मिल रहा है. ठीक है, उसका अकेले का सेक्रीफाइस नहीं है, लेकिन उसके साथ में हजारों लोगों का सेक्रीफाइस है, जिसके कारण आज ब्लैक बिकेम द प्रेसिडेंट. ओके, आज उनका जो सेक्रीफाइस था उसकी कीमत उनको मिल चुकी थी कि आज तक उनने जितने भी बलिदान दिए, जितने भी सेक्रीफाइस किए, अपनी फैमिली से दूर रहे, सब कुछ किया उन्होंने. ठीक है, तो आज उनको उसका रिजल्ट मिला था. पर उसको ये चीज का अफसोस था कि जिसके कारण ये रिजल्ट मिला है वो लोग आज ये रिजल्ट देखने के लिए वहां पर मौजूद नहीं है. देयर आर सेवरल नेम्स गिवन इन योर बुक ऑल्सो. ओके, ऑलिवर टेम्पो, रॉबर्ट सुबुक. Okay, many extraordinary peoples were there. Many extraordinary peoples were there who were the reason behind his success. ये एक ऐसा दौर था कि जहाँ पर वो लोग अपने आइडियाज रखने के लिए अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर लेते थे. मेंस एंड वुमेन यूज्ड टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ जस्ट टू पुट देयर आइडियाज. नाउ ब्रेव मैन, वो एक बहुत बहादुर आदमी था. लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेव मैन? ब्रेव मैन इज नॉट द पर्सन who doesn't get fear. ठीक है, जिसको डर नहीं लगता. लेकिन who is the person? The person who fight against their fear, who conquer the fear. जो अपने डर पर जीत हासिल करता है, who conquer the fear, that person is considered as a brave person. And Nelson Mandela is the best example for the brave, for his bravery. उनने हमेशा ये सीखा था कि कभी हम लोग बचपन से हम लोगों को हेट करना, नफरत करना या कलर्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना, ये सब हमें बचपन से नहीं सिखाया जाता. तो हम सीखते कब है? तो ये सारी चीजें हमारे अंदर पैदा की जाती. तो इफ वी आर एबल टू लर्न हेट, सो हाउ इजीली वी आर एबल टू लर्न द लव. अगर हम हेट इतना आसानी से सीख सकते हैं तो लव तो उससे भी आसानी से हम सीख सकते हैं. ठीक है, जो इंसान की अच्छाई है वो कहीं पर भी दिख जाती है. मैन्स गुडनेस इज फ्लेम्ड. ठीक है, वो एक ज्वाला की तरह होती है, वो कहीं से भी भड़क जाएगी. ओके, ही गिव एन एग्जांपल. व्हेन ही वाज इन अ केज, व्हेन ही वाज प्रिजन, दैट टाइम उसने एक गार्ड की आंखों में भी वो दर्द देखा है. उसके लिए उसको एक चिंता देखी है उसने. वाइल नो डाउट वो शायद सिर्फ कुछ पल के लिए होगी, लेकिन इवन दो ये एक चीज है दैट शोज दैट ह्यूमैनिटी इज देयर एवरीवेयर. हर इंसान के अंदर इंसानियत तो है. ओके, सो अगर ऐसा गार्ड जो पुलिस में उसको मार रहा है, उसको कैद करके रख रखा है, एंड इवन दो इफ ही कैन हैव सम पोलाइटनेस इन हिम, तो इसका मतलब लव सिखाना नहीं पड़ता. इट इज वेरी इजी टू गेट इट. अब साउथ अफ्रीका का कल्चर कैसा था कि अगर कोई फ्रीली रहना चाहता है तो उसे पनिश कर दिया जाता था. ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं. जब वो व्हेन ही वाज बोर्न, दैट टाइम ही कंसीडर्ड दैट फ्रीडम क्या होती है. सबसे पहले बोर्न, तो जब हम छोटे होते हैं तब किस चीज की हमको फ्रीडम चाहिए होती है? टू स्टे आउट एट नाइट. रात
में बाहर जाने की उसको फ्रीडम चाहिए थी। जब वो थोड़ा जवान हुआ, when he became young, तब उसको किस बात की फ्रीडम चाहिए थी? फ्रीडम टू गेट मैरी एंड लीव विथ हिज फैमिली। उसको अपनी फैमिली के साथ रहना है, अपनी जिंदगी बितानी है, ठीक। फिर धीमे धीमे ही जॉइंड नेशनल, ही इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिम कि मेरे को फ्रीडम का मतलब नहीं पता था, लेकिन जब मैं छोटा था, when he was child, at that time उसकी एक इच्छा थी, हम लोग भी जानते हैं, हमारी भी होती है, ओके, कि मुझे क्यों रात में पेरेंट्स बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, ओके, सो दैट वाज द फ्रीडम ही वाज वेटिंग फॉर। फिर उसको शादी करनी थी, ठीक है, व्हेन ही बिकेम यंग। फिर बाद में धीमे धीमे उसको समझ में आने लगा, एंड ही जॉइन नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ही जॉइंड दैट कमिटी। और तब उसको समझ में आया कि मैं किस फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो सिर्फ मैं अपनी फ्रीडम के बारे में सोच रहा था, यहाँ तो उसको उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर देयर इन सम क्लस्टर। हर किसी को आज़ादी चाहिए, ठीक है, और वो आज़ादी कैसी है? कंप्लीट फ्रीडम। तब उसको समझ में आया कि मैं तो आज़ाद था ही नहीं। वो बचपन से जहाँ घूमना है वहाँ घूम सकता था। ही कैन रेन इन द फील्ड ऑफ इन हिज फील्ड, सराउंडेड बाय हिज मदर, ठीक है, अपनी मम्मी के आसपास वो कहीं पर भी घूम सकता था। वो स्विम कर सकता था, ठीक है, इन देयर लेक, ही कैन स्विम, ही कैन वॉक, ही कैन रन, वो सब कुछ कर सकता था। उसको लगता था मैं आज़ाद हूँ, लेकिन धीमे धीमे उसे ये सारी चीज़ें पता चलने लगी दैट वी आर नॉट कंप्लीटली फ्री। हमारा फ्रीडम तो कहीं खो चुका है। नाउ ही इज सेइंग दैट अर्लियर, तब उसको जब समझ में आया, तब फिर उसने अपनी आज़ादी के लिए नेशनल कांग्रेस कमेटी ज्वाइन करने के बाद उसने अपने लोगों की आज़ादी के लिए काम किया। और तब ये जो डरा हुआ इंसान था, फ्राइटेंड मैन बिकेम द बोल्ड वन। ये एक बहादुर बन गया, नो ऑब्लिगेशन मैन, ठीक है, जो मतलब कभी किसी को मारने से डरता था, कभी कुछ गलत काम करने के बारे में सोचता था, ऐसा इंसान नाउ बिकेम अ क्रिमिनल वाई? बिकॉज ही हैज टू गो टू जेल। जो एक फैमिली में लविंग हस्बैंड बनकर रह रहा था अभी तक, ठीक है, वो आज क्या बन चुका था? वो क्या बन चुका था? मैन विदाउट होप। आज उसे अपने घर से दूर रहना पड़ रहा था। ये सारे सेक्रीफाइस उसने किए हैं अपनी लाइफ में। एक डरपोक इंसान एक बहादुर इंसान बना, एक इंसान जो लोगों को साथ बुरा करने में सोचता था बिकेम अ क्रिमिनल। द पर्सन हु वाज लविंग टू हिज फैमिली became had to leave his family and move away from his family। जो जिंदगी जीना चाहता था, जो लाइफ को बहुत जीता था, ठीक है, लाइफ को बहुत प्यार करता था, लाइफ लविंग मैन became he had to live like a monk, ठीक है। उसको पंडितों की जैसे या हम बोले सन्यासी की जैसे उसको जीना पड़ा। All these were the sacrifice, and that was the result that he became the first black president of South Africa. Now that was the time when he can change the world. And according to him, what he says that freedom वो नहीं है कि हम किसी का हक ले लें। फ्रीडम क्या है? हर किसी को हक से रहने दे। Each and everybody can live according to their life. Okay? ये चीज वो जानता था। अगर उसने किसी की फ्रीडम ले ली तो it means that he is not a proper leader. So that was his mindset. And after that there arise the change in South Africa. जो इतने सालों से, फर्स्ट डिकेड से लोग, कई सदियों से जो लोग कास्ट के बंधन में जुड़े हुए थे, ठीक है, कलर की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, आज वो सब एक साथ एक कमिटी के अंदर बैठे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ नेल्सन मंडेला। ओके, so that is clear, the chapter is clear. Thank you. If you have any doubts regarding the chapter, you can write in the comment section. I will give you the answer. Thank you.